ہماری آج کی ایکسپلینیشن حال ہی میں ریلیز ہونے والی مووی اوڈیسی کی ہے، جس کی تحریر کرسٹوفر نولن نے گریک میتھولوجی پر مبنی ایک ناول سے اٹھائی ہے اور ان کی ڈائریکشن میں یہ شاہکار فلم بنی ہے۔ ان کی موویز ایسی ہوتی ہے جو صرف پردے پر چل رہی کہانی سے سمجھ پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ مووی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اس کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ اوڈیسیس اس کا مرکزی کردار ہے، جسے میٹ ڈیمن نے بخوبی نبھایا ہے۔ اوڈیسیس اپنی ایتھیکا ریاست کا کنگ تھا، جو ایک لیجنڈری گریک ہیرو مانا جاتا ہے، اور اس مووی میں اس کے ٹروجن وار میں شامل ہونے اور اپنی بہترین حکمت عملی سے اسے جیتنے کے بعد گھر واپس آنے کی کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ ٹروائے کی جنگ گریک میتھولوجی کا ایک افسانوی معرکہ تھا، جو تقریباً 12 یا 13 سینچری BC کے اوائل میں پیش آیا تھا۔ یہ گریکس نے ٹروائے پر مسلط کیا تھا، کیونکہ ٹروائے شہر کے پرنس پیرس نے اسپارٹا کی ریاست کی رانی ہیلن کو اپنے ساتھ بھگا لیا تھا، اور کچھ لوگوں کے خیال میں وہ خود بھاگی تھی۔ ہیلن کو اس وقت دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی مانا جاتا تھا، اور زیادہ تر ریاست کے بادشاہ اور شہزادے اس پر فدا ہونے کے دعوے دار تھے، جس پر سب نے ایک قسم کھائی کہ شہزادی ہیلن جس کے ساتھ مرضی شادی کر لے، ہم اسے منظور کریں گے اور ان کی شادی کی حفاظت ہماری مل کر ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے مینیلیوس اور اگامیمنون نے تمام یونانی ریاستوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کر لیا۔ اوڈیسیس کبھی اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کا ایک نومولود بیٹا بھی تھا، لیکن اپنے کیے ہوئے وعدے سے وہ مکر نہیں سکتا تھا۔ یہ مووی زیادہ تر جنگ کے بعد اوڈیسیس کے اپنے گھر واپسی پر فوکس کرتی ہے۔ یہ مووی آدھی پاسٹ اور آدھی پریزنٹ میں فلمائی گئی ہے، جس کو میں نے سیکوینس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ مووی کی شروعات میں ہم ایتھیکا کے شاہی محل میں ایک لڑکے کو ٹرائے کے جنگ کی جیت کا گیت گاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جسے رانی پینیلوپی غصہ ہو کر یہ گیت گانے سے منع کرتی ہے، اور اوڈیسیس کا بیٹا ٹیلیمیکس اپنی ماں سے اس کی وجہ پوچھنے آتا ہے۔ یہاں سب درباری اس پر ہنستے ہیں۔ ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹروجن وار کو جیتے ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں، اور آج 20 سال بعد بھی اوڈیسیس واپس نہیں آیا۔ اس کی غیر موجودگی میں ایتھیکا کی سلطنت افراتفری کا شکار ہو چکی ہے، اور رانی سے شادی کے بے دعوے داروں کے گروہ سے یہ محل ہر وقت بھرا رہتا ہے، اور انہوں نے تقریباً محل پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس گروہ کی قیادت مغرور رئیس زادہ اینٹینوس کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی ان میں سے رانی سے شادی کرنے میں کامیاب ہوگا وہ ایتھیکا کا نیا کنگ مانا جائے گا۔ لیکن کوئین پینیلوپی آج بھی اپنے ہسبینڈ اوڈیسیس کے واپس آنے کی امید میں ہے، اور وہ کسی بھی دعوے دار سے شادی کرنے کو تیار نہیں، اور یہ دعوے دار جو ان کے محل میں مہمان بن کر بیٹھے ہیں، یہ اپنی ریلیجیس ٹریڈیشن کی وجہ سے انہیں زبردستی نکال بھی نہیں سکتے، اور کیونکہ ٹیلیمیکس اکیلا ہے اور اس کے بعد کے وفاداروں کی تعداد بھی بہت کم، تو وہ اس سے لڑ بھی نہیں سکتا، اور کوئین اپنے بیٹے ٹیلیمیکس کو ابھی راج گدی کے لیے پرفیکٹ بھی نہیں سمجھتی۔ ایمیوس جو کہ اوڈیسیس کا وفادار آدمی ہے، وہ ٹیلیمیکس کو مینٹور کے ساتھ مل کر لڑنے کی ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ ایمیوس آنکھوں سے تو اندھا ہے، لیکن من کو پڑھنے کی قوت اس کی کمال ہے۔ وہ ٹیلیمیکس کو کہتا ہے کہ دشمن پر جلدی میں حملہ کرنے کے بجائے اس کو اپنے اوپر وار کرنے کا موقع دو، جسے تمہیں اسے ٹیکل کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ اسے اوڈیسیس کے شکار کا ایک واقعہ سناتا ہے، جب اوڈیسیس کو ایک وائلڈ بور نے پاؤں پر کاٹ لیا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے چاہے جنگ ہو یا شکار، اپنے فریق کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ دعوے داروں کے بارے میں ٹیلیمیکس کے پوچھنے پر ایمیوس بتاتا ہے کہ یہ سب نکلی ہے، ان میں سے 1-2 کو مار پڑے گی تو سب بھاگ نکلیں گے۔ ٹرائے کے جنگ میں ان کے شامل ہونے کا پیغام آیا تھا، لیکن یہ لوگ چپ گئے تھے۔ ٹیلیمیکس اپنی ماں کے پاس آتا ہے جو ایک کفن سل رہی ہے، اس کے گرینڈ فادر کی، اور ان کی روایت کے مطابق وہ تبھی دوسری شادی کر پائے گی جب وہ یہ کفن پوری طرح سل دے، لیکن وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ مجھے اس کو بنانے کی کوئی جلدی نہیں۔ جب ٹیلیمیکس وجہ پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ ایتھیکا کو بہرحال ایک کنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سلطنت بکھر رہی ہے، اور دوسری طرف ہمیشہ سمندری لوٹیروں کا خطرہ بھی بڑھنے لگا ہے، جو زیوس لا کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور اب یہ محل ان انچاہے لالچی مہمانوں سے بھرا رہتا ہے۔ اس محل کی اگر لوگوں میں عزت نہیں بچے گی تو یہ عمارت سے زیادہ کچھ نہیں۔ جس پر ٹیلیمیکس پوچھتا ہے کہ پھر آپ ان سے شادی کا کیسے سوچ سکتی ہے، اور یہاں ہمیں کوئین کا ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے، جس میں اوڈیسیس اپنی وائف پینیلوپی سے کہتا ہے کہ ٹروائے والوں کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے ہمیں شاید سالوں اس سٹی کا سیج کرنا پڑے، جس دوران ٹیلیمیکس بھی جوان ہو جائے گا اور تمہیں بھی میرے بغیر جینا سیکھنا ہوگا۔ پینیلوپی کہتی ہے کہ اگر تم جانے سے انکار کر دو تو، جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے بچے کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس ظالم اگامیمنون نے اپنی جیت کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دی تھی، اور ٹرائے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے پاس یہی ایک موقع ہے جسے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ قربانی کی طاقت قربانی
قربانی کرنے والے کی ادائیگی میں ہوتی ہے اور اسے ہی کمٹمنٹ کہتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر میں واپس لوٹ نہیں سکا تو تمہیں بھی دوسری شادی کی صورت میں یہ قربانی دینی ہوگی۔ پینلوپی کہتی ہے کہ پھر تمہاری یاد میرے فیصلوں کا تعین نہیں کرے گی، اور وہ اسے اپنا ایک پینڈنٹ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھنے سے ایتھینا دیوی تم پر مہربان رہے گی، جو گریک میتھولوجی میں جنگ میں ان کی مدد کرنے والی دیوی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ فلیش بیک ختم ہوتا ہے۔ ٹیلیمیکس اپنی ماں سے خود کو راجا بنانے کے لیے کہتا ہے، جس پر وہ اسے اوڈیسیس کا کمان باندھنے کے لیے دیتی ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے۔ لیکن اس کی ماں اوڈیسیس کا واقعہ سناتی ہے کہ کیسے وہ اس کو باندھتا بھی تھا اور کلہاڑیوں کے بیچ میں سے تیر نکال کر اپنا نشانہ ہٹ بھی کرتا تھا۔ ٹیلیمیکس اپنے باپ کی وفادار ملازمہ یوریکلے سے بحری جہاز پر سامان لاد کر تیار کرنے کو کہتا ہے اور آرڈر دیتا ہے کہ مینٹور کو میرا پیغام دینا کہ سویرا ہونے سے پہلے مجھے جہاز پر ملے۔ وہ اپنے باپ اوڈیسیس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اسپارٹن ریاست کی طرف نکل لیتا ہے، جہاں وہ کنگ مینلاؤس سے مل کر اپنے باپ کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ کرے گا، کیونکہ وہ جنگ سے زندہ واپس آیا تھا۔ شاید اس کو اوڈیسیس کے بارے میں کچھ پتا ہو۔ وہ مینٹور سے کہتا ہے کہ ان ہواؤں اور لہروں میں مجھے اپنے باپ کے زندہ ہونے کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ راستہ بھٹک گیا ہو۔ اسپارٹا پہنچنے کے بعد وہ مینلاؤس اور ہیلن سے ملتا ہے، وہی ہیلن جس کے حسن کی وجہ سے ٹروجن وار چڑھ گئی تھی، لیکن ہیلن کے حساب سے وہ صرف ایک بہانہ تھی۔ اگامیمنون ٹرائے شہر پر اپنا قبضہ چاہتا تھا۔ مینلاؤس کہتا ہے کہ ہم نے 10 سال تک سمندر کنارے انتظار کیا، یہاں وہاں بھٹکتے رہے، پھر اوڈیسیس کو ایک کمال ترکیب سوجی۔ اس نے لکڑیوں سے ایک عظیم گھوڑے کا پتلا بنوایا اور باقی بحری جہازوں کو واپس روانہ کیا، اور کسی کو بتائے بغیر ہم کچھ بیسٹ فائٹر اس کے اندر چپ گئے۔ سنان کو پتلے کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر ہم چپے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس پتلے کے اندر ہفتوں تک ویٹ کیا، ہمارے کچھ ساتھی ہماری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے، لیکن ہم ڈٹے رہے، اور آخر وہ دن آ گیا جب ٹروجن پتلے کے پاس پہنچ گئے۔ سنان سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسپارٹنز جنگ کرنے سے پہلے لوٹ گئے اور تمہارے لیے یہ تحفہ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ لوگ سنان کو تو مار دیتے ہیں، لیکن گھوڑے کے پتلے کو محل کے اندر لے جا کر کڑا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ رات کے اندھیرے میں گھوڑے کے پتلے سے نکلے اور وہاں موجود پہرے داروں کو مار کر کیسل کا گیٹ کھول دیا، اور باہر موجود چھپائے گئے ٹکڑی نے اندر آ کر ٹرائے شہر پر حملہ بول دیا۔ دیوی دیوتاؤں کی بلیسنگ سے ہم وہ جنگ تو جیت گئے، لیکن اس کے بعد ہمارا سفر بہت کٹھن رہا۔ میں 2 سال بعد اپنے گھر پہنچا، لیکن اوڈیسیس کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ مین وائل ہم پینلوپی کو دیکھتے ہیں، جس کے پاس اینٹینیس آتا ہے۔ رانی اپنے فادر ان لا کے کفن کو سلنے میں بیزی ہے۔ اینٹینیس کہتا ہے کہ سب دکھ رہا ہے کہ تم کتنی محنت کر رہی ہو اس کو بنانے میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ رات کو تم پھر سے اسے ادھیڑ دو گی۔ اور رانی جان جاتی ہے کہ اس کی خادمہ میلان تو اینٹینیس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ پھر سے رانی کو رجانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پینلوپی اس کو کوستے ہوئے منع کرتی ہے۔ ٹیلیمیکس کے بارے میں پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے دادا جی سے ملنے گاؤں گیا ہے، اور باہر آنے پر میلان تو اسے سب سچ کہہ دیتی ہے۔ اینٹینیس دوسرے دعوے دار سے کہتا ہے کہ ٹیلیمیکس کو واپس آتے ہوئے پائلوس کے مندر سے ہو کر آنا ہوگا اور اسے وہی مارنے کے لیے آدمی بھیج دو۔ وہ یہاں زندہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ وہ پلان بناتے ہیں کہ مندر میں پجاریوں کے روپ میں اپنے آدمیوں کو رکھیں گے اور ٹیلیمیکس کو اس کے آدمیوں سمیت مار دیں گے۔ مینلاؤس ٹیلیمیکس کو اپنے ریاست واپس جا کر اپنی فوج تیار کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کی فکر چھوڑ دو اور پہلے اپنی ریاست کو قابو میں رکھو، اور وہ بھی اس بات کو مان جاتا ہے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے۔ ہم اوڈیسیس کو اوجیجیا آئی لینڈ پر دیکھتے ہیں، جسے اپنے پاسٹ کی کچھ جھلکیاں تو یاد ہے، لیکن وہ باقی سب بھول چکا ہے۔ یہاں اس کے سامنے دیوی ایتھینا ظاہر ہوتی ہے، جو اسے اپنی یادداشت واپس لانے میں مدد کرتی ہے۔ یہاں ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے جس کا نام کیلیپسو ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں کتنے سال سے یہاں ہوں، شاید میرا بھی اپنا گھر ہو، اپنی بیوی بچے ہو، لیکن کیلیپسو اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اگر کچھ یاد آیا اور اس وجہ سے تمہاری یہ خوشی چھن گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اوڈیسیس جواب دیتا ہے کہ پھر یہ خوشی جھوٹی ہوگی۔ وہ اسے ٹروجن وار کے بارے میں یاد کرنے کو کہتی ہے، اور یہاں مووی پھر سے پاسٹ میں جاتی ہے۔ ٹروجن وار جیتنے کے بعد وہ گھر واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ یوریلوکس پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس سفر کا سامان پورا ہے، جس پر اوڈیسیس جواب دیتا ہے کہ جتنا ٹرائے سے لے چکے ہیں وہ کافی ہے، اور 1-2 سٹاپ بغیر کھانا کھائے ہم مر نہیں جائیں گے۔ اگامیمنون اپنے قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے ویسٹ کی سائڈ سفر کرنے لگتا ہے، اور اوڈیسیس اپنے قافلے کو ساؤدرن سائڈ سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ اپنے ساتھی کے پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ اگر قسمت مہربان رہی اور ہواؤں نے ساتھ دیا تو ہم نئی دنیا کو دیکھتے ہوئے اگامیمنون سے پہلے اتھیکا
अमेरिका पहुंचेंगे। समंदर में सफर करते हुए वो एक जमीन की टुकड़ी देखते हैं और क्योंकि आज ही उनका फूड स्टॉक खत्म हो चुका था, इसलिए ओडेसियस ऑर्डर देता है कि एक टुकड़ी तैयार करे और 3 हफ्तों के खाने पीने का सामान यहाँ से जमा करे। लेकिन यहाँ के गांव वाले इनकी जहाजों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने घरों को आग लगाकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये लोग एक बूढ़े से ऐसा करने के लिए पूछते हैं तो वो कहता है कि हमें लगा कि आप समंदरी लुटेरे हो। वो आदमी कहता है अगर आप साउदर्न साइड से जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ से बगैर खुराक के निकलकर ये फिर से समंदर का सफर शुरू करते हैं और आगे जाकर इनको एक और जमीन की टुकड़ी मिलती है और खुराक लेने की गरज से ये यहाँ पर रुक जाते हैं। इस खूबसूरत आइलैंड पर इन्हें एक भेड़ दिखता है, लेकिन इससे पहले कि यूरोलोकस उसे मार गिराता, ओडेसियस उसे मना करता है और इसके रेवड़ को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वाफर मिकदार में खाना जमा कर सके। उस भेड़ का पीछा करते करते ये लोग एक गार तक जाते हैं जहाँ उनको खाने का सामान मिल जाता है और यहाँ किसी के रहने के आसार भी हैं। इतने में भेड़ों का एक रेवड़ अंदर आता है और इनके पीछे यहाँ एक देवहैकल मगर इंसानी शक्ल सूरत वाला आदमी अंदर आता है और एक बड़ी चट्टान से गार का मुंह बंद कर देता है और अंदर आते ही वो देवहैकल इनमें से 2 आदमियों को खा लेता है और वो वहाँ सो जाता है। जब ये लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ओडेसियस चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर इसको कुछ हुआ तो हम फंस जाएंगे और प्लान करते हैं कि सुबह जब ये अपने बेड़ों को निकालेगा तो हम भी उसमें निकल जाएंगे। लेकिन सुबह जैसे ही ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं, इनमें आधे लोग ही बाहर निकलने में कामयाब होते हैं और वो आदमी अपने बेड़ों को निकालने के बाद फिर से गार का मुंह चट्टान से ढकने की कोशिश करता है। लेकिन ओडेसियस बाकी साथियों के मदद के लिए गार बंद होने से पहले अंदर कूद जाता है। दूसरे दिन वो देवहैकल इंसान फिर से बेड़ों को गार में लेकर आता है तो ये लोग आग से एक लकड़ी उठाकर उसकी आंख में मारते हैं और उसे अंधा करके यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। फरार होते हुए वो उस देवहैकल आदमी को समंदरी देवता पोसाइडन से चीखो पुकार करते हुए देखते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है कि वो देवहैकल मखलूक और कोई नहीं बल्कि फोलेफेमस था जो समंदरी देवता पोसाइडन का बेटा है और अब इन्हें लगता है कि शायद उसका कर्ज इन्हें लगेगा। इसके बाद प्रेजेंट में हम ओडेसियस को कैलिप्सो के साथ देखते हैं। वो कहता है कि इसके बाद हर समंदरी तूफान और उल्टी हवाएं हमें यही अंदाजा देती थी कि शायद हम पर पोसाइडन का कर्ज है। मूवी इसके बाद फिर से पास्ट में जाती है। समंदरी तूफान और भटकती हवाएं इन्हें एक टापू तक लाती है जो लेस्ट्रेगोनियंस देवताओं का इलाका है और वो देवकामत और आदमखोर होते हैं। यहाँ एक छोटे बच्चे को देखकर ये खुराक के लिए पूछते हैं और वो बच्चा अचानक चिल्लाने लगता है। हालात मजीद बिगड़ने लगते हैं क्योंकि वो लोग इन पर हमला करते हैं और बाकी मानदा आदमियों को खत्म कर देते हैं। यूरोलुकस की जान जाते जाते ओडेसियस बचा लेता है। अब इनके पास एक कश्ती है और कुछ ही साथी बचे हैं और कश्ती में बैठने के बाद ओडेसियस को एतीना दिखने लगती है और यहाँ ओडेसियस ये ऑर्डर देता है कि पहले खाना ढूंढेंगे और फिर अपना भटका हुआ रास्ता और कुछ ही सफर के बाद एक टापू की चोटी पर किसी घर से धुआं निकलता देख लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ ओडेसियस के साथी उसके लिए गए फैसलों की वजह से उस पर नाराज दिखाई देते हैं और उसको कश्ती के पास छोड़कर खुद आगे जाने का फैसला करते हैं। उनमें से एक का तीर और कमान लेते हुए ओडेसियस कहता है कि आज रात के खाने का बंदोबस्त मेरी जिम्मेदारी है और तुम लोगों को जो मिल जाए वो इकट्ठा करके लाओ। ओडेसियस यहाँ शिकार की तलाश में घूमने लगता है और इसके साथी चोटी पर मौजूद घर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में इन्हें टाइगर, लायन और एक ब्लैक पैंथर भी दिखते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करते। घर पर पहुँचने के बाद एक बुढ़िया यहाँ आती है और इनको देखकर डर जाती है, लेकिन ये उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमें खाना खिला दो। वो बुढ़िया अपना नाम सरसी बताती है। वो इनको अपने हथियार बाहर रखकर खाने के टेबल पर बैठने के लिए कहती है। ये लोग जब अपने हथियार रखते हैं तो हमें पहले से वहाँ बहुत सारे हथियार दिखते हैं, लेकिन भूख से निडाल इन लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता और वो बुढ़िया खाना तैयार करके इनको खिलाने लगती है। दूसरी जानिब हम ओडेसियस को देखते हैं जिसे घूमते घूमते एक हिरन मिलती है और अपने असूल के मुताबिक वो उसे पहले अपने कमान के स्ट्रिंग खींच कर वान करता है और थोड़ा पीछा करने पर वो इस हिरन को मार गिराता है और हिरन के पास जाने पर उसे हिरन की जगह इंसान दिखता है और ये अजीब नजारा देखकर वो अपने साथियों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। हम यहाँ सरसी के घर का मंजर देखते हैं जहाँ ओडेसियस के साथियों के मुंह में वो खाना खुद ही टूसने लगता है और सरसी अपने हाथों से ही उनके शक्लों को पिग्स की शक्ल में बदलने लगती है और वो पूरी तरीके से पिग बन जाते हैं और हमें पता चलता है कि सरसी
सरसी एक विच है। अपने साथियों को ढूंढते हुए ओडेसियस भी सरसी के घर तक पहुंच जाता है, जो उसे खाने के लिए इनवाइट करती है। ओडेसियस जो पहले से ही चौकन्ना था, यहाँ इर्द गिर्द के माहौल को नोट करने लगता है। सरसी उसके सामने भी वही खाना रखती है और वो अपने साथियों के बारे में पूछने लगता है, और वो ये भी पूछता है कि इतना सारा खाना किस लिए बनाया है, तुम तो अकेली हो। सरसी जवाब देती है कि तुम्हारे साथी यहाँ आए थे और खाना खाने के बाद चले गए। वो ओडेसियस से खाने के लिए कहती है, और जब ओडेसियस अपना पहला नवाला उठाता है तो मेज पर पड़े एक पिंजरे का कौवा और दरवाजे के बाहर वो पिग्स शोर मचाने लगते हैं, और यहाँ टेबल पर उसे अपने एक फाइटर की रिंग दिखती है। सरसी उसके गले पर चाकू रखती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे मारती, ओडेसियस उस कौवे को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि छुरी नीचे करो वरना कौवे को मार दूंगा, और सरसी चाकू हटा लेती है। ओडेसियस के पूछने पर पता चलता है कि वो कौवा असल में सरसी की बहन है। इसके बाद वो अपने साथियों को वापस असली रूप में लाने के लिए कहता है और सरसी उन्हें वापस इंसान बना लेती है। यहाँ ओडेसियस सरसी से रास्ता बताने के लिए पूछता है। वो कहती है कि ब्लाइंड टेरेसियस ही तुम्हें अब रास्ता बता सकते हैं और वो तुम्हें हेडिस में मिलेंगे। दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक ब्लाइंड टेरेसियस तिब्बस का एक अफसानवी पैगंबर था और देवमालाई रिवायात के मुताबिक देवताओं ने उसे ब्लाइंड किया था, लेकिन उसके बदले उसे सच्ची पेशनगोई की सलाहियत अता की थी, जिसके बदौलत वो मुस्तकबिल को देख सकता था। और हेडिस एक ज़ेर ज़मीन खित्ता था, जो एक तारीक और धुंधलाया हुआ मकाम जहाँ मरने के बाद रूहें जाती है। ये कोई जहन्नम या अबदी सजा की जगह नहीं, बल्कि ये जिंदगी के इख्तिताम पर हर अच्छी बुरी रूह के लिए एक उदास और बेरंग इंतजार गाह के मानंद होती है। हेडिस का नाम सुनकर ओडेसियस कहता है कि वहाँ से तो कोई जिंदा बचकर नहीं लौटा है, लेकिन सरसी कहती है कि तुम लौट आओगे। शफक की जानिब शुमाल का रुख करो, जहाँ रात और दिन मिलते हैं, और फिर जमीन पर तब तक चलते रहो जब आग का दरिया बर्फीली नदी से ना मिले। वहाँ जाकर एक गड्ढा खोदना और उसमें कुर्बानी का खून डाल देना। वहाँ रूहें आकर आगे की सफर के लिए तुम्हारी रहनुमाई कर लेगी, और वहाँ से निकलकर वो सरसी के बताए गए जगह पर पहुँचता है और जैसा उसने कहा था वैसा करता है। जमीन से रूहें निकलना शुरू हो जाती है और ब्लाइंड टेरेसियस उन्हें खून पिलाने के लिए कहता है, क्योंकि फिर वो उनसे बात कर पाएंगे। सेनोन की रूह उससे झूठ बोलने पर नाराज होती है, लेकिन ओडेसियस कहता है कि तुम्हारी उस कुर्बानी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई थी। और सिनान उससे कहता है कि जिन फाइटर्स को तुम जंग के बाद दफना नहीं पाए वो सब यहाँ भटक रहे हैं, इसलिए घर पहुँचने के बाद एक शिप लेना और उस पर अनजान वेस्ट की जानिब बढ़ते रहना जब तक जमीन ना मिले, और फिर वहाँ कुर्बानी देकर अपने साथियों को हॉनर करना, और मेरे नाम का लॉर्ड एंटिनीस को उसके शर्म के तौर पर देना, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया था। यहाँ एगामेम्नोन की रूह भी आती है, और जब ओडेसियस उसके मरने की वजह पूछता है तो वो कहता है कि जंग जीतने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने अपनी बेटी की कुर्बानी देने के लिए मुझे अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। वो उसे मशवरा देता है कि जब घर पहुंचो तो बेस बदल कर जाना, अपना वक्त लेना और सही मौका पाने के बाद खुद को जाहिर करना। टेरेसियस कहता है कि साउथ वेस्ट के सिमत चलना, उन सायरन की आवाजों से परे। वो गाने तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन तुम सब मर जाओगे। इन जानलेवा सायरन को पार करने के बाद तुम्हें या तो कैरेबिट्स बावर या सेल्ला मॉन्स्टर के बीच किसी एक रास्ते को चुनना होगा। बावर तुम सबकी जान लेगा, लेकिन चट्टान वाला मॉन्स्टर सिर्फ 6 बंदों की जान। वो उसे ट्रिंशिया आइलैंड पर अपने आदमियों को उतारने से भी गुरेज करने को कहता है, और इतने में बाकी रूहें भी आ जाती है जिसको दफनाया नहीं गया था, और इससे पहले कि वो इन पर हमला करे ये लोग अपनी कश्ती पर चढ़कर भाग निकलते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक कैरेबिट्स एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर और जानलेवा बावर है, जो मौजूदा इटली और सिसिली के दरमियान एक तंग अबनाए मेसीना में वाक़या है। और सेल्ला मॉन्स्टर इसके मुताबिक एक आदमखोर बला है जो उस नेरो स्टेट के किनारे पर रहती है, और यहाँ से निकलते हुए एक मॉन्स्टर की जिद में आप आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओडेसियस को हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो कैलिप्सो से ये सब कह रहा था। वो उससे अपने साथियों के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिस पर कैलिप्सो उसे लोटस फ्लावर खाने के लिए देती है और कहती है कि कल सही वक्त पर तुम्हें सब याद आ जाएगा। अगली सुबह ओडेसियस अपनी टूटी हुई कश्ती की लकड़ियों को इकट्ठा करने में मसरूफ था। कैलिप्सो उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी माजी को याद करना होगा। वो कहता है मुझे सच नहीं जानना और यहाँ तुम्हारे साथ मैं खुश हूँ, लेकिन वो उस पर अपने साथियों के साथ आगे सफर को याद करने के लिए दबाव डालती है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है। ओडेसियस अपने साथियों समेत उन सायरन वाली जगह को उबूर करने
लगते हैं। वो अपने आदमियों के कानों में वैक्स डालता है ताकि उनको वो गाने सुनाई ना दे और अपने आदमियों से खुद को वहाँ बांधने के लिए कहता है ताकि वो इन गानों को सुन सके कि इसमें ऐसा क्या है, और उनको ऑर्डर देता है कि चाहे मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं लेकिन मुझे छुड़ाने की कोशिश मत करना जब तक हम वहाँ से गुजर न जाए। वो उनका गाना सुनते हुए वहाँ से जाता है और चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये गाना सुनने की वजह से उसे शदीद तकलीफ महसूस हो रही हो। अपने साथी के पूछने पर वो बताता है वो गीत कुछ ऐसे थे, उनमें मेरे उन अधूरे वादों का जिक्र था जिन्हें मैं निभा नहीं सका, और वो मुझे बता रहे थे कि मैं खुद ही घर पहुंचना नहीं चाहता। टेरेसियस के प्रोफेसी के मुताबिक वो जगह भी आ जाती है जहां इन्हें बौर या चट्टानों के बीच का रास्ता चुनना होगा। ओडेसियस कहता है कि बौर के साथ वाले रास्ते से निकलते हैं, और वो ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि उसके साथी उसकी मुखालिफत करके चट्टानों के बीच वाले रास्ते को चुन ले, और होता भी ऐसा ही है। और बौर के करीब पहुंचने से पहले वो अपना पूरा जोर लगाकर कश्ती को चट्टानों के साइड मोड़ लेते हैं और बौर से बचकर उस नैरो स्ट्रेट की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन इतने में चट्टानों वाली सेला मॉन्स्टर उनमें से 6 लोगों को खींच लेता है, और यूरिलोकस गुस्सा करते हुए ओडेसियस से पूछता है कि तुम्हें पहले से ये पता था, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया। वो जवाब देता है क्योंकि अगर हम बौर के रास्ते जाते तो सब मर जाते। वो अब ट्रिंशिया आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं और ओडेसियस जब उन्हें बताता है कि ये सूरज देवता के जानवरों के चराने का जजीरा है, यहाँ मत उतरना, तो वो उसकी बात नहीं मानते। वो कहता है यहाँ के जानवरों को खाने से गुरेज करना, और उसके साथ ही ये कहते हुए यहाँ पर आराम के लिए उतर जाते हैं कि हम बस यहाँ के फल और पौधे खाएंगे और पानी पिएंगे, और जैसे ही हवाएं रुक जाएंगी हम यहाँ से निकल लेंगे। एक रात जब ओडेसियस की आंखें खुलती है तो वो अथीना को देखता है जो जंगल की तरफ जाती है, और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ वो देखता है कि उसके साथी एक जानवर को खा रहे हैं, और वो कहता है कि अब सूरज देवता तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि टेरेसियस ने मुझे ऐसा कहा था। एथीना उससे कहती है कि तुम्हें सबने बताया कि ये लोग मरेंगे, लेकिन इनको बचाने की जिद में तुम खुद अपने घर नहीं लौट पा रहे हो। वो लोग नोटिस करते हैं कि हवाएं चलना बंद हो चुकी है और वो यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते उन्हें एक समुद्री तूफान घेर लेता है जो निहायत ही खतरनाक साबित होता है। इनका जहाज टूटकर समंदर में डूब जाता है और ओडेसियस के सारे साथी मर जाते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ कैलिप्सो उससे कहती है कि तुम इस आइलैंड पर अकेले नहीं आए थे, तुम्हारे साथ तुम्हारे कुछ दोस्तों की लाशें भी बहकर आई थी। वो कहती है कि तुम हफ्तों तक अनकॉन्शियस थे और मैं तुम्हें कंवल का फूल खिलाती थी ताकि उन डरावने ख्वाबों से तुम छुटकारा पा सको और तुम्हारा दर्द दिमाग से ज्यादा जिस्म में हो, और तुम्हारा ध्यान रखते रखते मुझे तुमसे प्यार हो गया। ओडेसियस पूछता है कि मुझे यहाँ आए हुए कितना अरसा हो चुका है। कैलिप्सो जवाब देती है कि 7 साल। वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा था, जिस पर वो जवाब देती है कि तुम्हें खोने के डर से मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तो तुम जरूर मुझे छोड़कर जाओगे। कैलिप्सो उसे उसकी बीवी का वो दिया हुआ पेंडेंट भी देती है और कहती है कि हफ्तों तक जब तुम बेसूध थे तो तुमने इसको अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ा था और नींद में एथीना के नाम के अलावा एक और नाम भी पुकारते थे। ओडेसियस कहता है कि घर जाने में मेरी हेल्प करो। वो कहती है जैसा कि तुम अपने साथियों का तकदीर बदलने की जिद में लगे थे लेकिन तुम उन्हें बचा नहीं पाए, वैसे ही खुद को समंदर की मौजों के करम पर छोड़ दो और अपने आप को पोसाइडन के हवाले करके अपनी सजा एक्सेप्ट करो। ज़्यूस तुम्हें मरने नहीं देंगे। ओडेसियस कश्ती के बचे कुछ लकड़ियों से एक राफ्ट बनाता है और खुद को समंदर के देवताओं के हवाले करता है। समंदरी लहरें उसे बहाकर ले जाती है, कभी डबोकर तो कभी पानी के ऊपर उछाल कर। और एक दिन जब उसे अथीना आवाज देती है तो उसकी आंखें खुलती है और उसके पूछने पर ओडेसियस को पता चलता है कि वो एतिका में है और वो एक भिखारी बनकर अपनी रियासत की तरफ चल देता है। इसके बाद हम एंटिन्यूस के उन आदमियों को देखते हैं जो पाइलोस के मंदिर की तरफ जाने वाले हैं ताकि टेलेमाकस को वहां मार सके। वो जाते हुए एम्यूस पर हमला करते हैं और इसके जानवरों को भी चुरा लेते हैं और कुछ देर बाद यहाँ ओडेसियस भिखारी बनकर पहुंच जाता है। एम्यूस से एतिका के हालात, राजा रानी और शहजादे के बारे में जानने की कोशिश करता है और एम्यूस से उसे पता चलता है कि दावेदारों ने टेलेमाकस को पाइलोस के मंदिर में मारने के लिए डाकुओं को भेजा है। जब यहाँ से पाइलोस जाने के लिए ओडेसियस निकलने लगता है तो एम्यूस उससे पूछता है कि तुम क्यों मदद करना चाहते हो। इस पर ओडेसियस कहता है मैं तुम्हारे राजा के साथ ट्रोजन वार लड़ चुका हूँ, और एम्यूस के पूछने पर बताता है कि तुम्हारा राजा बदले का तूफान लेकर आएगा। पाइलोस के मंदिर में हम टेलेमाकस
टेलेमेकस को देखते हैं जो राजा से मिलने के लिए जा रहा था और ओडेसियस उससे चिल्लाकर कहता है कि मुझे एम्यूस ने तुम्हारे पास भेजा है। वो उसे भी अपने साथ अंदर लेकर जाने लगता है। यहाँ मंदिर में हम उन डाकुओं को पुजारियों के रूप में देखते हैं जो बाहर खड़े टेलेमेकस के पहरेदारों को मार देते हैं और यहाँ उनका दिया हुआ शराब पीने से मेंटोर खून की उल्टियाँ करने लगता है और चाकू निकालकर टेलेमेकस पर वो हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओडेसियस अकेले ही उन सबको मार गिराता है और अपने बेटे को पुजारी के कपड़े पहनाकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो लोग मंदिर को आग लगा देते हैं और अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। रास्ते में वो टेलेमेकस को बताता है कि वो सिनोन है जो उसके पापा का जानबाज सिपाही है। हालात का जायजा लेने के लिए उसने यहाँ मुझे पहले भेजा है। वो कहता है कि अपनी वापसी के जश्न में एक दावत बुलाओ और उनमें सब दावेदारों को भी बुलाओ और अपनी माँ को उनमें से एक को चुनने के लिए कहो और मैं भी वहाँ रहूंगा। पेनेलोपी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। वो उससे ओडेसियस के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि जंग की कहानियां तो बहुत सुनी, लेकिन उसके बाद का किसी को नहीं पता। वो मेनेलियुस का मशवरा सुनाते हुए कहता है कि खाली राजगद्दी से हम फौज नहीं बना सकते, इसलिए आपको किसी एक दावेदार को चुनना होगा जिससे बाकी सब चले जाएंगे और मुझे बस एक से ही लड़ना होगा। लेकिन रानी उस पर गुस्सा करती है। एम्यूस और ओडेसियस भी उस दावत में आते हैं जो शहजादे ने रखी है। रास्ते में ओडेसियस अपने पुराने बीमार पड़े कुत्ते को देखने के लिए रुकता है और ये नजारा टेलेमेकस देख लेता है, जिससे उसको शक हो जाता है कि ये कोई भिखारी नहीं बल्कि ओडेसियस है। महल में ओडेसियस सिनान का वो लॉर्ड एंटिनीस को वापस करता है, जिसे देखकर उसके चेहरे के तासुर बदल जाते हैं और वो ओडेसियस पर हमला करता है, लेकिन टेलेमेकस बीच में आकर उनको शांत करवाता है और दावत को खत्म कर देता है। मिलान तो उस बहरूपिये को रानी का पैगाम देते हुए कहती है कि सबके जाने और दियो के जलने के बाद रानी से मिल लेना। जब रानी के पास वो आता है तो रानी अपनी खादमा से उस भिखारी के पाँव धोने के लिए कहती है। यूरेकुला जब पाँव साफ करते हुए उस पुराने जख्म को देख लेती है तो वो अपने मालिक को पहचान लेती है, लेकिन ओडेसियस उससे चुप रहने का इशारा करता है। रानी उससे अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसके सामने अथीना के उस पेंडेंट का जिक्र करता है और रानी इमोशनल हो जाती है। वो कहता है कि ज़्यूस के ला को तोड़ने की वजह से या ट्रॉय पर डाले गए मुजालिम से या नफरत और दर्द की आग में जलते हुए शायद आपका हस्बैंड खुद ही अपने घर वापस लौटना नहीं चाहता हो, लेकिन ओडेसियस जिंदा है और जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी वो खुद ही आ जाएगा। लेकिन रानी कहती है कि उसके इस दलदल में मेरी जिंदगी बीत चुकी है और इतना कहने के बाद वो उठकर ऐलान करती है कि दावेदारों को महल में इकट्ठा किया जाए, उनके हथियारों को बाहर जमा करके फिर महल के दरवाजे बंद कर दिए जाए और जो दावेदार शर्त पूरी कर पाएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। टेलेमेकस एम्यूस को ऑर्डर देता है कि भरोसेमंद नौकरों की मदद से सबके हथियार ऊपर वाले कमरे में जमा करके बंद करवाओ। दो कुल्हाड़ियों को आपस में बांधकर उनके बीच एक छोटी सी जगह छोड़ दी जाती है और ऐसी कुल्हाड़ियों को एक लंबे लाइन में रख दिया जाता है और जो दावेदार ओडेसियस की कमान से इन कुल्हाड़ियों के बीच तीर गुजारकर कामयाबी से अपना टारगेट हिट करेगा वो होगा एतिका का अगला किंग। ये रानी की शर्त है। सब अपनी अपनी बारी में कोशिश करते हैं लेकिन किसी से नहीं हो पाता और लास्ट में ओडेसियस आवाज लगाता है कि मैं भी ट्राई करना चाहूंगा और उसको भी मौका दिया जाता है और वो कामयाबी से इस शर्त को जीत जाता है और महल में मौजूद सब लोगों को यकीन हो जाता है कि ये बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि ओडेसियस है और अपनी अपनी जान बचाने लगते हैं और वो सबको एक एक करके तीर से मारने लगता है। एंटिनीस अपने आदमी को हथियार लाने के लिए कहता है और वो नौकर जब ऊपर आकर कमरे के अंदर दाखिल होता है तो एम्यूस उसे अंदर ही बंद कर देता है, लेकिन वो वही छत पर कुल्हाड़ी से वार करके एक सुराख बनाने की कोशिश करता है ताकि नीचे महल में मौजूद अपने आका एंटिनीस के आदमियों को हथियार दे सके। लेकिन टेलेमेकस ये देखकर उसके पीछे आता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और आखिरकार टेलेमेकस उसको मारने में कामयाब होता है। नीचे महल में हथियार मिलने के बाद एंटिनीस के लोग ओडेसियस को घेर लेते हैं, लेकिन एन वक्त पर टेलेमेकस उसे एक हथियार देता है जिससे वो वही एंटिनीस का खेल खत्म करता है और महल में मौजूद बाकी लोग सर झुकाकर उसको अपना राजा तस्लीम कर लेते हैं। इसके बाद वो हेडिस में सिनोन के साथ किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए वेस्ट की सिमत में निकल पड़ता है। इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। इस मूवी में हमने ओडेसियस को देवी देवताओं को चैलेंज करते देखा, जैसे कि वो अपने क्रू का अकेला रखवाला हो या उनके कर्ज को ना मानना, और उसको इन सब की सजा भी मिलती है। जैसा कि पोसाइडन जो कि समुद्री देवता था, उसने ओडेसियस के घर जाने के सफर को कठिन से कठिन बनाया, या ट्रोजन के साथ धोखा करने के बाद उसका सुकून उससे छिन गया। लेकिन एथीना के शक्ल में हमें दिखाया गया है कि कुछ गॉड्स की उस पर ब्लेसिंग भी थी, तभी वो
حدیث سے زندہ بچ گیا یا ان سائرنز کو سننے کے بعد بھی وہ مر نہیں گیا، بلکہ اسے اپنے گناہوں کا پتہ چلا۔ اس کے دل میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کا بوجھ ضرور تھا، لیکن لاسٹ میں 7 سال وہ اوجیجیا کے آئی لینڈ پر قید رہا اور شاید کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ مووی آپ تک لانے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔